Welcome everybody. This is our 10th video or session in JEE Mains previous year question series for chapter System of Particles and Rotation Motion, also known as Rotational Mechanics of class 11th. Before this we have made 9 videos in this series for this chapter, and all of those can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos. Name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions or PYQs. We have also started similar series for NEET, so you can go to our channel in playlist section. You can find videos for NEET previous year question also. And if you like this stuff useful and helpful, then do like these videos, share as them with your friends, your classmates, and subscribe to our channel. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes and support us with whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to bring you more questions, latest question papers with latest books, and in more better quality, in higher resolution with better computer hardware. So if you like to donate something, then you can scan these QR code, and if you have any suggestions, then you can contact in on this email ID. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to question number 100, and I hope in 3 or 4 more videos, we will be completing this whole chapter. So this was the question 100 question which we completed in previous video. Let's start the next one and make it slightly thinner. Okay. Two identical spherical balls of mass m and radius r each are stuck at two ends of rod of length 2r and mass m. तो यहाँ पे हमारे पास एक रोड है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है, मास m है और लेंथ 2r है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द रोड. तो इस एक्सिस से सपोज कीजिए इसको हम ओ ओ डैश बोल देते हैं, तो ओ ओ डैश के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंप्लीट सिस्टम का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे दो स्फेयर हैं और ये स्फेरिकल बॉल्स हैं, तो हम इनको सॉलिड स्फेयर मान के कैलकुलेशंस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अराउंड क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज एम लेंथ स्क्वायर बाय 12 होता है. यहाँ पे लेंथ 2r के इक्वल है, सो m 2r स्क्वायर बाय 12. यहाँ से हमें मिल जाएगा m r स्क्वायर बाय 3, बिकॉज ये 4 देगा और 12 इस पे कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उट्स, जो स्फेयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलोंग हमें पता है, जो कि सेंटर के अलोंग होता है, बिकॉज स्फेयर एक 3D बॉडी है, तो उसका एज सच कोई डायमीटर नहीं होता, या डायमीटर के अलोंग कोई सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता. वो 2D और 1D बॉडीज में होता है, 2D बॉडी में एक्चुअली, नॉट इन 1D. सो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम स्फेयर लिखते हैं, तो इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखते हो तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है दो स्फेयर के बीच में, एक तो ये डिस्टेंस है r, और यहाँ पे स्फेयर के सेंटर की बात होगी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास r है और सिमिलरली आल्सो ये डिस्टेंस भी r है. तो इस पॉइंट से, पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस हमारे पास टोटल 2r हो जाएगा. सो मास टाइम्स 2r का स्क्वायर. स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 और मास सबका कैपिटल M ही गिवन है, तो mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर. इसको जब हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो 5 × 4 20 प्लस 2 22 mr स्क्वायर बाय 5. अब दोनों स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिस्टम का, इट विल बी mr स्क्वायर बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस 44 mr स्क्वायर बाय 5, और जब हम इसको एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो इट विल बी 15
5 mr² plus 213 mr². So 137 mr² by 15, ऑप्शन ए हमारा मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses m and m/2 are connected at the two ends of a massless ridged rod of length L. The rod is suspended by a thin wire of torsional constant K at the center of mass, as shown in the system. Because the torsional constant K, restoring torque is equal to K theta for angular displacement is theta. If the rod is rotating by angle theta node and released, the tension in it when it passes through mean position will be. So let us adjust it slightly. So first of all हम क्वेश्चन का आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। सो सपोज कीजिए आपके पास एक रोड है, ये हमारे पास एक रोड है जिसपे दो मासेस अटैच्ड है। पहले वाला एक कॉर्नर पे m मास है, we make it with fill, एंड दूसरा m/2 है, तो इसको थोड़ा स्मॉल दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास दो मासेस है और स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हम मान के चलते हैं। तो सपोज स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसे हैं। नाउ जब आप इस पे कोई टॉर्क लगाओगे, मींस इसको डिस्प्लेस करोगे, रोटेट करोगे एंगल थीटा नोड से, यहाँ पे मेंशन है रोड इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा नोड। सो सपोज आपने एंगल रोड को कुछ ऐसे रोटेट कर दिया, तो अब रोड में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो जब आप इसको लीव करोगे वापस, तो ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। या आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जो आपकी रोड है वो ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो आपकी रोड की एक तो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, एक एंडिंग पोजीशन होगी, और जो एक मीन पोजीशन होगी। सपोज कीजिए ये आपकी मीन पोजीशन है रोड की, तो जो रोड है उसके पास एक मैक्सिमम ऊपर की तरफ होगा पॉइंट, और ऐसे ही एक पॉइंट रोड के पास नीचे की तरफ होगा। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रोड ऑसिलेट करेगी और बाद में बीच में सेटल हो जाएगी। और जो ये एंगल गिवन है हमें, ये एंगल गिवन है थीटा नोड, कि वो थीटा नोड को उसको स्टार्टिंग में यहाँ तक ले जाएगा और फिर वो वापस यहाँ पे आ रही है, वो यहाँ तक जाती है, फिर मीन पॉइंट पे आ जाती है, फिर ऐसे ऑसिलेट करती है। टू एंड फ्रो ऑसिलेशन है यहाँ पे। और आपको पता है कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है जैसे आपने पढ़ा है हार्मोनिक ऑसिलेशंस में। या आप इसको नॉर्मली हार्मोनिक रहने दीजिए, आप इसको नॉर्मल ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन में आपको पता है दैट v इज मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। मीन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और ऐसे सिनेरियो में जो v मैक्स होती है उसकी वैल्यू आपको जो होती है इट इज a ओमेगा। और यहाँ पे a क्या होता है, इट इज एम्पलीट्यूड, और जो ओमेगा होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। जो यहाँ पे ऑसिलेशन है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका हम इस क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बेसिक कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो लेट अस डू कैलकुलेशंस। सो स्टार्टिंग में जो आपकी रोड है उसको सेंटर ऑफ मास के अराउंड सस्पेंड किया गया है, तभी ये सिस्टम जो आपका स्टेबल रह सकता है। मींस जो आपकी ये यहाँ पे ये थ्रेड है या जो भी है, जब इसको सस्पेंड किया गया तो इसको सेंटर ऑफ मास पे सस्पेंड किया जाएगा, एल्स ये जो सिस्टम है आपका बैलेंस नहीं होगा, ये वर्टिकली ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा। तो सपोज कीजिए अगर ये डिस्टेंस हमारे पास x है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस एक्स, और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, mx इज इक्वल टू m/2, ओके, m/2 of x is equal to m into l minus x। तो
तो ये हमारे पास जो मास है ये m/2 है और ये मास हमारे पास m है, और ये हमारा हमने इसका सेंटर माना हुआ है जहां से अटैच किया गया है, और ये डिस्टेंस हमने कितना माना है x, यहां तक ये डिस्टेंस हमने माना है x। तो इसको सोल्व करते हैं। सो mx/2 इज इक्वल टू ml माइनस mx, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, सो इट विल गिव 3mx/2 इज इक्वल टू ml, और यहाँ से x आ जाता है 2l/3, मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपके पास है 2l/3 और ये वाला डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा l/3। सो जो ये डिस्टेंस है आपके पास, इसकी वैल्यू आपको l/3 गिवन है, और जो मासेस हैं हम इनको पॉइंट मासेस मानते हैं, सो दैट जो इनकी रेडियस है वो रेडियस हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ बिकॉज यहाँ पे रोटेशन हो रही होगी, तो हमारे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, दैट टॉर्क इज k टाइम्स थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है। और टॉर्क का हमारे पास एक और अनदर फॉर्मूला होता है, दैट टॉर्क इज आई अल्फा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व होगा। सो लेट अस फाइंड आउट, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट इफ वी हैव टू यूज इट देन हम इसकी वैल्यू यूज कर पाए। तो सिस्टम का आई क्या होगा, आई ऑफ सिस्टम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज जो रोड है वो तो मासलेस है, तो रोड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो ओनली इन दो पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट के लिए m/2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर x, और x की वैल्यू हमारे पास है 2l/3, प्लस जो सेकंड मास है m, इसके लिए डिस्टेंस है l/3 स्क्वायर, सो m/2 4l²/3 9 सॉरी प्लस ml²/9, ये 2 पे कट जाता है, 2ml², तो ये हो जाता है 3ml²/9, और यहाँ पे बच जाता है हमारे पास ml²/3। तो ये हमारे पास आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ना हमें बताना है टेंशन इन इट व्हेन इट पासिस थ्रू मीन पोजीशन। तो जब ये आपका ऑब्जेक्ट है, मींस कोई भी मास जब अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तब इस रोड के अंदर कितनी टेंशन डेवलप होगी, टेंशन इन इट व्हेन इट पासिस थ्रू मीन पोजीशन। तो आपको ये पता है कि जब भी आपके पास कोई रोटेशनल मोशन हो और आपको यहाँ पे ऐसे टेंशन पूछ ली जाए, तो नॉर्मली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कितनी टेंशन डेवलप हो रही होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा mv²/r, m मास है, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज रोटेशनल रेडियस। तो अगर हम जो m मास वाला ऑब्जेक्ट है इस पे फोकस करें, तो इसका मास m है, जब ये मीन पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, और रेडियस क्या होगी यहाँ पे, सेंटर से डिस्टेंस है जो, दैट इज l/3। नाउ बिकॉज ये ऑसिलेटरी मोशन है, मींस जब ये आपका पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से ये मैक्सिमम स्पीड पे होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसको फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी मैक्स इज ए ओमेगा, और ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। नाउ सो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन में ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम ये एज्यूम करके चलें, बिकॉज जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इनमें हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं आपके पास, जो थीटा नोड है वो स्मॉल है, तो अगर आपका एंगल स्मॉल हो तो आपके पास ये रिलेशन होता है, दैट थीटा इज आर्क बाय रेडियस। सो थीटा नोड की वैल्यू
थीटा की वैल्यू थीटा नोड होगी। आर क्या है आपका, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज एम्पलीट्यूड ए, और यहाँ पे रेडियस है L/3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट जो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, इट इज थीटा नोड L/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ए की वैल्यू। नाउ कमिंग टू वी मैक्स, सो वी मैक्स हो जाएगा थीटा नोड L/3 इंटू ओमेगा। नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन के अंदर हमें ओमेगा गिवन है या नहीं। देखिए अगर आप आंसर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नहीं है, तो हमें जो ओमेगा है उसको भी एलिमिनेट करना होगा समहाउ। सो लेट अस डू दैट। इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क की वैल्यू गिवन है, टॉर्क इज गिवन एज के थीटा, और अगर आप यहां से टाइम पीरियड बनाते हैं तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई I बाय के, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फ्रॉम दिस हमारे पास जो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। सो अगर हम डिवाइड कर दें 2 पाई बाय टी की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई I बाय के, सो जो ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k बाय आई। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं। सो वी मैक्स आ जाएगा थीटा नोड L/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज k बाय आई, और ये k कौन सा है जो हमें यहाँ पे मेंशन है फॉर्मूला के अंदर, दैट टॉर्क इज k थीटा। सो वी हैव रीच्ड अप टू हियर। नाउ हमारे पास ये जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो मास इज m, सॉरी कैपिटल M ले लेते हैं, और वेलोसिटी ये रही हमारे पास, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, थीटा नोड स्क्वायर L स्क्वायर बाय 9 इंटू के बाय आई, और डिवाइड बाय r है, और r की वैल्यू है L/3। सो L और 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 इसको कैंसिल कर देगा। सो m थीटा नोड स्क्वायर L स्क्वायर के बाय L इंटू आई, और आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज ml स्क्वायर बाय 3। सो ml स्क्वायर बाय 3, और यहाँ पे 3l था, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल किया, 3 था, तो ml स्क्वायर बाय 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा k टाइम्स थीटा नोट स्क्वायर बाय l। और अगर अब हम आंसर को मैच करें, सो हियर इज आंसर ऑप्शन सी, k टाइम्स थीटा नोट स्क्वायर l। सो इस क्वेश्चन में ओनली जो ट्रिकी पार्ट है दैट इज ये ओसिलेशन वाला पार्ट, कि जब ऑब्जेक्ट ओसिलेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। तो इस क्वेश्चन को एक और वे में पूछा जा सकता है कि जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, ये तो मीन पोजीशन है, जब वो किसी मैक्सिमा या मिनिमम पोजीशन पे होगा तब टेंशन कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उस सिनेरियो में जो टेंशन है वो रोड के अंदर जीरो होगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of length 50 centimeter is pivoted at one end. It is raised such that it makes angle 30 degree with the horizontal as shown in the release and released from the rest. Rest से release कर दिया गया. Angular speed when it passes through the horizontal will be. तो जब ये horizontal point से pass करेगी तो इसकी angular speed हमें यहाँ पे calculate करके बतानी है. So let us move it slightly side by. Now बिकॉज यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे, अगर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, तो इस सिचुएशन में हमें इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं,
एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम बताना होता या एंगुलर एक्सेलरेशन बताना होता तो शायद हम यहाँ पे क्या करते, टॉर्क का यूज करते, टॉर्क निकालते। बट बिकॉज हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे बताना है ओमेगा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। सो बिकॉज ये रोड है तो रोड का एक सेंटर ऑफ मास होगा। एनर्जी जब भी आप कंजर्व करोगे सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे करते हैं हमेशा। तो स्टार्टिंग में रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको O बोल दें, ये पॉइंट को B बोल दें, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी ऐसे। समथिंग लाइक दिस, OB पॉइंट A, और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। और हमें ये पता है कि जो O से, अगर ये पॉइंट C आपका, तो O से C तक की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो O से B तक की लेंथ इसका हाफ हो जाएगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप निकाल सकते हो दैट जो BA लेंथ होगी, यानी कि हाइट, जो सेंटर ऑफ मास जो हाइट फॉल करेगा, इट विल बी 25 साइन 30। और इसको हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1/2, सो 1/8 मीटर। ये हाइट का चेंज आएगा। नाउ टोटल एनर्जी कंपेयर करते हैं। टोटल एनर्जी एट B पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A पॉइंट। A पॉइंट को हमने ग्राउंड माना है, तो B पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिकॉज B स्टेट में जब रोड ऊपर है तो वो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे ओनली एनर्जी होगी mgh। जब हम A सिचुएशन में आ जाते हैं, A पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि A को ही हमने ग्राउंड माना हुआ है। सो इट विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। So mgh is equal to half I। नाउ O पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रहा है पूरा का पूरा, तो O पॉइंट के अराउंड जो पूरी रोड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल किया जा सकता है एंड हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी 6gh बाय l² अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा। सो 6g h है हमारे पास 1/8 और L है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 मीटर, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। सो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे कट कर देगा, तो ये देगा हमें √30। सो ऑप्शन बी हमारा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 identical circular planar disc each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P। तो P पॉइंट से पास होता है एक एक्सिस, और जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कैलकुलेट करके बताना है। सो अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाएं, सपोज हम एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक एक्सिस है जो ऐसे P पॉइंट से पास हो रहा है और जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, P पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। और तो हमें क्या चाहिए होगा, हर डिस्क का उसके सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, दैट इज हाफ mr² होता है। दैट हम ये इजीली कर सकते हैं। बट हर डिस्क का हमें P पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो इस सिनेरियो में करना इजी नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ सिमेट्री। हम सिमेट्री का यूज करेंगे। सिमेट्री का यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे O पॉइंट के अराउंड। जो ये O एक्सिस है, O एक एक्सिस जो O पॉइंट से पास होता है, लेट अस मेक इट OO डैश। और हम जो डिस्क हैं सबको नेमिंग दे देते हैं। ये A डिस्क है, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F
और ये सेंटर वाली को हमने जी बोल दिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश एक्सिस ऑफ डिस्क जी, तो ओ ओ डैश तो जी डिस्क के सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो बाकी की हर डिस्क, जो बाकी की हर डिस्क है वो इस ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, इट इज ट्वाइस द रेडियस, और सभी की सभी डिस्क आइडेंटिकल है तो सबकी रेडियस बराबर है। तो ए का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ओ के अराउंड, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी और एफ का भी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस ऑफ डिस्क ए, तो डिस्क ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई एक्सिस इसके परपेंडिकुलरली पास हो रहा है ऐसे, तो उसके अराउंड तो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास टाइम डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इज m, डिस्टेंस इज 2r square. So this will give us 4r square plus half, यानी कि 9/2 mr square. और हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ए एफ ई डी सी बी सबका सेम होगा और सबका यही होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश एक्सिस ऑफ होल सिस्टम क्या हो जाएगा, जी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बाकी सभी 6 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जी का है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 9/2 एम आर स्क्वायर, बिकॉज बाकी सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है अबाउट ओ। सो दिस विल गिव अस 54 प्लस 1 55/2 एम आर स्क्वायर, 55/2 एम आर स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास दो एक्सिस है, पहला है ओ ओ डैश एक्सिस जो कुछ ऐसे है, और दूसरा है हमारे पास एक एक्सिस जो पी पॉइंट से पास हो रहा है जो ऐसे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये है ओ ओ डैश और ये सपोज पी पी डैश, हम बोल देते हैं इसको भी नेम कर देते हैं पी पी डैश। बिकॉज दोनों एक्सिस पैरेलल है तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट आई पी पी डैश इज इक्वल टू आई ओ ओ डैश प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है कि सर हमें ये लिखना है या हमें ये लिखना है, इज इक्वल टू आई पी पी डैश प्लस मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, बिकॉज आपके पास दो एक्सिस है। तो इसका कंफ्यूजन आप ऐसे दूर कर सकते हो कि जो आपका ये पूरा सिस्टम है इसको आप एक कंप्लीट डिस्क मान लो, ये सपोज आपने पूरा डिस्क मान लिया, तो जो आपका ओ ओ डैश एक्सिस है वो इस डिस्क के सेंटर में है और आप डिस्क से बाहर की तरफ जा रहे हो। अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो जो आउटसाइड एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। अगर ये एक्सिस ऐसे होता, मींस जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो इस एक्सिस के अराउंड होता, नोट नहीं ऐसा नहीं, हाँ इसको हम रब कर देते हैं पहले। हाँ अभी आपका सिनेरियो कुछ ऐसा है, अब आप डिस्क से बाहर जा रहे हो बिकॉज आपको आई ओ ओ डैश नोन है और आपको पी पी डैश निकालना है, तो आपको जो नोन है वो डिस्क के अंदर है और जो अननोन है वो बाहर है। तो अगर आपका अननोन बाहर है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मींस बाहर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, कितना, मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आपको पीपी डैश का पता होता और आपको ओ ओ डैश का निकालना होता इस सिनेरियो में, तो पीपी डैश वाले में से ये माइनस होता, बिकॉज आप अंदर की तरफ जा रहे हो, डिस्क के इंटीरियर में जा रहे हो। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, दिस विल बी द वैलिड फॉर्मूला। सो इट विल बी ओ डैश के लिए 55/2 एम आर स्क्वायर। टोटल मास है यहाँ पे, टोटल कितनी डिस्क है, 7 डिस्क है, सो 7m, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास r प्लस 2r यानी कि 3r, सो 3r का स्क्वायर। सो 55/2 mr स्क्वायर प्लस 9 into 7 63
एम आर स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बी गिव अस 6 12 प्लस 55 178 181 बाय 2 एम आर स्क्वायर। सो जो ऑप्शन डी है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from a uniform circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure। तो जो डिस्क रिमूव है वो यहाँ पे है ऊपर की तरफ। The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to plane and passing through center of the disk। सो यहाँ पे बिगर डिस्क की बात हो रही है कि बिगर डिस्क के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सो लेट अस डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डिस्क रिमूव की गई है उसका मास निकालना होगा। अज्यूम कि पूरा का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये डिस्क है तो मास जो है वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो डेंसिटी आ जाएगी, एरियल डेंसिटी 9m बाय पाई आर स्क्वायर, और जो स्मॉल डिस्क है उसका मास आ जाएगा, मास ऑफ स्मॉल डिस्क 9m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क दैट विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 9, और इसको कट करके मिलेगा ओनली m। तो ये आ गया स्मॉल डिस्क का मास। नाउ ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम है, जो पूरी बिगर डिस्क है, आप ऐसे बोल सकते हो आई बिग डिस्क, ये किस किस से बनी हुई है, आई ऑफ स्मॉल डिस्क से बनी हुई है प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क पता हो और स्मॉल डिस्क पता हो तो स्मॉल डिस्क को सब्ट्रैक्ट करके हम बिग रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई ऑफ बिगर डिस्क क्या होगा, इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर और मास है 9m, रेडियस है r, so it is half m r square। Now I of small disk half, mass is m and radius is r by 3, so r square by 9। Now ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल डिस्क का, ये किसके अराउंड होगा, जो स्मॉल डिस्क के सेंटर के अराउंड जो एक्सिस पास होता होगा ये उसके अराउंड होगा। बट आपको कहाँ पे चाहिए, ये इस पॉइंट पे चाहिए, यानी कि इसका अगर आप ओ पॉइंट बोलो तो आपको स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अराउंड तो पता है, बट आपको चाहिए बिगर डिस्क के सेंटर के अराउंड, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज आप डिस्क से बाहर जा रहे हो, मास टाइम्स यानी कि m स्मॉल डिस्क का मास, दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज 2r by 3, सो 2r by 3 का स्क्वायर प्लस i remaining, so it is 9mr square by 2 equals to mr square by 18 plus 4mr square by 9। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस आई रिमेनिंग, तो ये आपको देगा 8 प्लस 9 mr स्क्वायर बाय 18, और यानी कि हाफ mr स्क्वायर। सो 9mr स्क्वायर माइनस इसको ऐड करके आएगा 9mr स्क्वायर बाय 18, यानी कि हाफ mr स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, इज इक्वल टू आई रिमेनिंग, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये देगा 8 बाय 2 mr स्क्वायर यानी कि 4 mr स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular disk in xy plane as shown in the figure, the ratio of moment of inertia about z and z dash axis will be। तो z और z dash axis के अराउंड हमें बताना है। तो यहाँ पे i of z हो जाएगा जो कि डिस्क के परपेंडिकुलर है, सो हाफ mr स्क्वायर, और i z z dash हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर यानी कि 3 by 2 mr स्क्वायर। तो रेशियो निकालते हैं
तो आपको मिलेगा 1:3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। सो ऑप्शन सी मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन रोड Mn free to rotate in vertical plane about the fixed end n, तो यहाँ पे फिक्स एंड ये है, इसके अबाउट रोटेशन होगा, is held horizontal when end m is released, the speed of this end when road makes angle alpha with the horizontal will be proportional to। सो आपको ये जो पॉइंट m है, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आपको m पॉइंट की स्पीड बतानी है। तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, अगर हम ओमेगा पता हो तो हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे मेजर पॉइंट क्या होगा कि हमें ओमेगा फाइंड आउट करनी है। और ओमेगा कैसे फाइंड आउट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये जो रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहाँ पे था, अब रोड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, तो जो हाइट में चेंज आया उसकी वजह से रोड के पास क्या आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे एनर्जीज को इक्वल करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ओमेगा से v की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सो जो ये हाइट का डिक्रीमेंट होगा, ये h, इट विल बी बिकॉज सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन होगी, तो ये जो आपका पास डिस्टेंस है ये क्या होगा L/2, बिकॉज जो टोटल लेंथ है उसको हम L मान के कैलकुलेशन करेंगे। सो जो h की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी इट्स लाइक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा इट विल बी L/2, बिकॉज जो ये वाली लेंथ है ये भी आपके पास L/2 ही होगी। सो L/2 इंटू साइन अल्फा, ये आपके पास हाइट का डिक्रीज आ जाएगा। सो अगर हम इसको बोलते हैं पोजीशन ए और इसको बोलते हैं पोजीशन बी, तो टोटल एनर्जी इन पोजीशन ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन पोजीशन बी, और बी को हम ग्राउंड मान लेते हैं, तो बी पॉइंट पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बी पे ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ए पे ओनली, बिकॉज ए पे रोड रेस्ट पे है तो ए पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ए पे टोटल एनर्जी है mgh और h की वैल्यू है L/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बिकॉज n पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है, तो I की वैल्यू हो जाएगी हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा mg L/2 साइन अल्फा। सो यहाँ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं, m कैंसिल कर सकते हैं, l से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, सो इट विल बी 3g साइन अल्फा बाय l अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा, और v हो जाएगा r इंटू ओमेगा, जो m पॉइंट है इसके लिए रेडियस किसके इक्वल होगी, लेंथ के इक्वल होगी, सो l इंटू 3g रूट साइन अल्फा इंटू l, और आप इसको बोल सकते हो 3gl साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल होगी रूट साइन अल्फा के। सो ऑप्शन डी हमारा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर of length L and radius R about perpendicular bisector is I. What is the ratio of L by R such that moment of inertia is minimum? So इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था। So again let us do, कि आपके पास एक सिलेंडर है, so सबसे पहले सिलेंडर प्लॉट कर लेते हैं। Here is the cylinder. Let us rotate it. So ये सिलेंडर है हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो एक्सिस होंगे, एक तो ये वाला एक्सिस होता है जो इसके वन फेस से एंड होके दूसरे फेस पे एंड करता है, वन फेस से स्टार्ट होके दूसरे फेस पे एंड करता है, और एक एक्सिस जो
इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो सपोज कीजिए इसको हम बोल देते हैं ओ ओ डैश और इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्स डैश। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो आई है यहाँ पे आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और देन हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो आई है वो किस एक्सिस के अराउंड है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो दैट इज आई ये ओ डैश एक्सिस। तो आपको जो आई है इट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश। नाउ हमें पता है कि जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और हम यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर लेके बात कर रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। एक्सेस एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश एक्सिस के अराउंड निकालना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो कैलकुलेशन करने के लिए देयर इज ए ट्रिक जो कि आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए जो आपका ओ ओ एक्सिस है, जब आप उस ओ ओ एक्सिस से देखते हो तो आपको सिलेंडर की एक ऐसे स्लाइस दिखाई देगी, इस टाइप की स्लाइस। तो जो ये स्लाइस आपको दिख रही है जो ओ ओ डैश ये ओ ओ डैश एक्सिस है ये इसके किससे पास करेगा? ये इससे एज ए डायमीटर पास करेगा। तो जो आपका ओ ओ डैश एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें एक कंट्रीब्यूशन तो इस डिस्क वाले डायमीटर से आएगा और एक कंट्रीब्यूशन आपका जो आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है इसको आप टू वेज में कंप्रेस कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। फर्स्ट आप इसको कंप्रेस करके एक सिंगल रोड बना सकते हो। तो एक कंट्रीब्यूशन यहां से आएगा, ये आपने वन डायमेंशन में कंप्रेस कर दिया इसको, और फिर आप इसको पूरे को कंप्रेस करके एक डिस्क बना सकते हो इस एक्सिस के अलोंग। जो एक्स एक्स एक्सिस है इसके अलोंग आप इसको सिर्फ कंप्रेस करके एक डिस्क की फॉर्म में कर सकते हो, तभी आपके पास एक वैलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर दोगे, मींस सपोज कीजिए आप एक्स एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो और आपने पूरे सिलेंडर को एज ए रोड कंप्रेस कर दिया, तो आपका एक्सिस यहीं से पास होगा, एक्स 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 एक्सिस वाला। तो इसका जो सारे के सारे पार्टिकल हैं इसी एक्सिस पे लाई करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। बट अगर आप इसको दोनों साइड से यहां से भी और यहां से भी कंप्रेस करके एक डिस्क बना दो, तब आपको एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है और जो डिस्क होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। सो ऐसे आप एक्सिस कंप्रेशन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीजों का कैलकुलेट कर सकते हो, आपको हर वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस डू, हम ये जो एक्स एक्स एक्सिस है यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जब आप ओ ओ डैश के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, सिलेंडर को लेंथ वाइज कंप्रेस कर दिया। तो आपका जो ओ ओ डैश एक्सिस है वो यहाँ से ऐसे पास होता है। तो एक तो ये रोड से कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, ये अब आपके पास एक रोड है और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। एल यहाँ पे क्या है, सिलेंडर की लेंथ है, प्लस जब आपको आपने इसको एज ए डिस्क कंप्रेस किया दोनों साइड से, तो आपके पास ये क्या बन गया, जो ओ एक्सिस है वो इसके ऐसे डायमीटर से पास होता है और डायमीटर के अलोंग जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 4। So this will be your moment of inertia of this cylinder about OO dash axis। अब आपको इसको L और R की फॉर्म में मिनिमाइज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सो मिनिमाइज कैसे करेंगे? हम मिनिमाइज सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। सो हमें L और R को रिप्लेस करना पड़ेगा। L और R को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है? रिलेशन से, और वो रिलेशन है वॉल्यूम के अंदर। दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल, और यहाँ से हमारे पास जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी v बाय पाई एल। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस
एम वी 4πL। और अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव। सो इसका हम L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, dl। यहां से हमें मिलेगा 2ml/12 प्लस यहाँ पे mv/4π तो कांस्टेंट है, और ये l पावर -1 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 इंटू 1/L²। और जब आपको पॉइंट निकालना होता है तो आप दोनों को इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आएगा ml/6 और यहाँ से आएगा -mv/4πL² इक्वल टू 0। m से आप कैंसिल कर सकते हो, सो यहाँ से L/6 आ जाता है v/4πL²। और यहाँ से आप जो v है, v की वैल्यू पुट कर दोगे, बिकॉज आपको v और r में रिलेशन, l और r में रिलेशन चाहिए। सो L/6 इज इक्वल टू पाई r² L/4πL²। ये L² से L² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये 4 उधर जाएगा तो 4/6 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू r²/L²। और हमें L/R चाहिए तो L/R हो जाएगा √3/2। और अगर हम ऊपर जाके चेक करते हैं, सो ऑप्शन सी इज द वैलिड आंसर। और जो हमने यहाँ पे प्रोसेस बताई, ये सिमेट्री प्रोसेस है। आप इस सिमेट्री प्रोसेस का यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So moment of inertia of an equilateral triangle lamina ABC about an axis passing through its center O and perpendicular to plane is I node as shown in the figure. If DEF is cut, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका आंसर है 15/16। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। लेट मी शो यू नो शो। सो आई थिंक यस, हियर इट इज। ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पे आंसर हमने 15/16 आई नोड निकाला है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 98, तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव, सो इट इज सेम एज 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 17 में आया था प्रीवियस, जो हमारा वो था वो 19 में आया हुआ था, और एक और ऐसा क्वेश्चन है जो 20 में भी आया हुआ है शायद। तो ये आप मींस इट इज ए इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, A circular hole of radius r/4 is made in thin uniform disk having mass m and radius r as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining portion of the disk about an axis passing through point O and perpendicular to the plane of disk. So हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट किया था। So let us do again. बिकॉज ये डिस्क है तो पूरा का पूरा मास एरिया वाइज डिवाइड होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरियल डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो क्यों फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो डिस्क रिमूव की गई है हमें उसका मास फाइंड आउट करना है। सो एरियल डेंसिटी होगी मास ऑफ होल डिस्क बाय इट्स एरिया, जो कि है πr²। नाउ मास ऑफ स्मॉल डिस्क हो जाएगा एरियल डेंसिटी यानी कि m/πr² into area of small disk, that is pi times radius है r/4 यानी कि r²/16। so it comes out to be m/16। so now हमारे पास दो डिस्क हैं, एक कंप्लीट बिगर डिस्क है, एक स्मॉल डिस्क है, और अगर बिगर डिस्क में से स्मॉल डिस्क निकालते हैं तो एक रिमेनिंग पोर्शन है। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो नॉर्मली ऐड होता है।
तो हम लिख सकते हैं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क प्लस आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग डिस्क अबाउट पॉइंट ओ आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर एंड स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल डिस्क के सेंटर के अराउंड एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होता है, इट विल बी हाफ मास है m बाय 16, रेडियस है r बाय 4 यानी कि r स्क्वायर बाय 64 प्लस बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ओ एक ऐसे एक्सिस के अराउंड चाहिए जो o से पास होता है, ना कि o डैश से. ये सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अराउंड होने चाहिए. तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस, यानी कि प्लस में करना पड़ेगा मास टाइम्स m बाय 16 मास ऑफ स्मॉल डिस्क इनटू डिस्टेंस दैट इज 3r बाय 4 का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर बाय 16 प्लस i ऑफ रिमेनिंग. सो इट इज हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगा mr स्क्वायर बाय 512 प्लस 9mr स्क्वायर 16 इंटू 16 होता है 256. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम हो जाएगा. आई रिमेनिंग हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 1 19 mr स्क्वायर और इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 19 mr स्क्वायर बाय 512 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग. तो बेस सेम करने के लिए यहाँ हम भी 256 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है. तो 256 माइनस 19 तो ये आपको देगा 246 एंड 63 237. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. 237 mr स्क्वायर बाय 512 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग. सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 111. For a solid sphere of mass m, radius r, a cube of maximum possible volume is cut. The moment of inertia of the cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces. एक फेस के perpendicular और center से पास होता है. So first of all हम इसका first part solve करेंगे कि हम जो एक solid sphere है mass m, radius r, उससे एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट करना है. तो वो जो क्यूब है उसकी साइड में और आर में क्या रिलेशन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास कुछ एक ऐसा स्फेयर होगा. अब इसके अंदर से हमें क्यूब कट करना है. सो जो हम ये क्यूब कट करेंगे उसका एक एज इस कॉर्नर को टच करेगा यहां पे और दूसरा एज इस कॉर्नर को टच करेगा. तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमने क्यूब कट किया है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा. और ये आपका क्यूब का बैकवर्ड एज होगा और ये क्यूब का फ्रंट एज होगा. तो अगर हम ये लेंथ निकाल पाए और उसको क्यूब के डायगोनल के इक्वल कर पाए तो हमें मिल जाएगा. ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट बी है. तो जो ए और बी पॉइंट है दोनों, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होंगे. जो क्यूब का डायमीटर है डायगोनली अपोजिट है तो डायमीटर के अलोंग इक्वल होंगे. सो जो डिस्टेंस ए बी है इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर. और जो क्यूब होता है क्यूब के अंदर ये डिस्टेंस ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली. कैसे.
सपोज कीजिए जो क्यूब है उसकी साइड ए है, तो ये भी आपका ए है और ये भी ए है। सो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, जिसको हमने नोट इन रेड, हम इसको सेपरेट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट बाय रेड। सो दैट्स दिस। ये जो डिस्टेंस है हमारा पास, इसको अगर हम सी बोले, तो जो सी बी है, सी बी विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इट विल बी रूट 2a। एंड नाउ हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी जो ए पॉइंट से शुरू होके बी पॉइंट तक जाएगी, जिसका हाइपोटेनियस ए बी होगा, जो उसका परपेंडिकुलर ए सी होगा, और जो उसका बेस है वो सी बी होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ए सी हमें पता है इट इज साइड ऑफ क्यूब, तो ये ए ही होगी। सो ए स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, सो ये हमने सी डी लिख दिया, ये सी बी है। सी बी का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाती है रूट 3a। सो रूट 3a इज इक्वल टू 3r, और यहां से a की वैल्यू आ जाती है, यानी कि साइड ऑफ क्यूब जो किसी एक स्फेयर के अंदर मैक्सिमम आ सकती है, इट इज 3r बाय रूट 3, 2r सॉरी 2r बाय रूट 3। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, एक साइड ऑफ क्यूब जो कि किसी क्यूब स्फेयर के अंदर मैक्सिमम आ सकती है। नाउ कमिंग टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें मास भी चाहिए होगा, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास भी फाइंड आउट करना होगा। तो बिकॉज ये स्फेयर है और सॉलिड स्फेयर है, तो जो आपका पूरा का पूरा मास है वो अलोंग द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी रो, इट विल बी, मास m है और वॉल्यूम होगी स्फेयर की 4/3 पाई r क्यूब। अब पूरा पूरा मास इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपका क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट विल बी साइड क्यूब, सो 8r क्यूब बाय, जब आप रूट 3 का भी क्यूब करोगे सो आपको मिलेगा 3√3। सो मास ऑफ क्यूब आ जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो m 3m बाय 4r क्यूब मल्टीप्लाई 8r क्यूब बाय 3√3। सो r क्यूब से r क्यूब कैंसल, ये हो जाएगा 2 और ये 3, सो इट गिव अस 2m बाय रूट 3 पाई। इट इज, ये हो जाएगा क्यूब का मास। तो हमारे पास क्यूब का मास है, हमारे पास क्यूब की साइड है। अब हम क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कमिंग टू क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फेसेस। सो हम क्यूब वापस से ड्रॉ करते हैं, ये क्यूब की साइड है और ये उसका मास है। सो एक फेस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होता है, तो मींस आपका जो एक्सिस है वो समहाउ ऐसे पास हो रहा होगा, यहाँ एक फेस से आ रहा है, एक फेस से अंदर जाता है और दूसरे फेस से, अपोजिट फेस से बाहर की तरफ निकलता है। नाउ ऐसे एक्सिस के अराउंड क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल सकते हैं? सो हम क्या करते हैं, अगर आप इस क्यूब को कंप्रेस करते हो तो आप इस क्यूब को इस फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हो कि आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कंप्रेस हो जाए। अगर आप इसको लेफ्ट राइट से कंप्रेस करते हो तो भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा, और टॉप बॉटम से कंप्रेस करते हो तो भी आपके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा। तो हम इसको टॉप बॉटम से रेक्टेंगल की फॉर्म में करते हैं कंप्रेस, और इस टाइप की शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इट इज, जो अगर इसकी लेंथ L है और ये भी लेंथ L होगी, बिकॉज क्यूब की ये क्यूब से बना है और दोनों साइड इक्वल होंगी, सो ml²/12 प्लस ml²/12, तो ऐड होके हो जाएगा ml²/6 मींस, और यहाँ पे L क्या है, साइड लेंथ, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12
मास है हमारे पास 2m/√3 पाई और इंटू एल है हमारे पास इट इज 2r/√3। तो उसका हम स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी सॉरी 6, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि दोनों ऐड हो गए थे। ए का हम स्क्वायर करते हैं 4r² इंटू 1/6। सो इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें देगा, इधर ये 3 पे जाएगा और ये देगा 4mr² बाय 3 इंटू 3 9√3 पाई। मैच करते हैं। सो हियर इज ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड इफ अगर आपको यहाँ पे थोड़ा क्यूब वाला डाउट है कि सर क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा डाउट है कि जब हमने सिलेंडर के लिए किया था, लेट मी डू इट हियर अगेन, लेट मी ड्रॉ द सिलेंडर। सो लेट्स रोटेट इट। कि जब हमने सिलेंडर के लिए किया था सेम सिनेरियो में एक ऐसा एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलरली पास हो रहा था, तो हमने क्या किया था, सिलेंडर को कंप्रेस करके 2 वेज में हमने कंप्रेस किया था। एक तो इसको कंप्रेस करके रोड बना दिया था और जो आपका एक्सिस है वो इसके यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा था तो इसके अलोंग हो गया था ml²/12। और फिर हमने इसको एक डिस्क में कंप्रेस कर दिया था दोनों साइड से और एक्सिस यहाँ से डिस्क के परपेंडिकुलर जा रहा था तो और यहाँ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था हमारे पास। ये डिस्क से होता है mr²/4 जो उसके डायमीटर से पास होता है। तो यहाँ पे तो आपने दूसरा एक्सिस वाला कंप्रेशन लिया नहीं, या तो हमने सिर्फ एक कंप्रेशन लिया है। सो लेट अस डू दैट मेथड आल्सो। तो अगर पहले आप इसको कंप्रेस कर दो किस एक्सिस के अलोंग, कि आप इसको प्रॉपरली कंप्रेस करके एक रोड बना दो, तो जब आप इसको एक रोड बना दोगे तो अगेन इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपके पास ml²/12। और जब आप इसको ओनली इन दो साइड से कंप्रेस करोगे तो आप इसको एक ऐसे प्लेन में रिड्यूस कर दोगे जिसके परपेंडिकुलरली और जिसके डायमीटर अलोंग ये एक्सिस पास कर रहा होगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड भी एल है और ये साइड भी एल है और आपका एक्सिस इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर है, तो अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस ओ डैश एक्सिस के अराउंड होता है m इंटू l² ऑफ दिस बाय 12 प्लस l² ऑफ दिस साइड बाय 12। तो ये आपको देगा ml²/6। नाउ अब एक आप दूसरा एक्सिस ले लेते हो जो यहां से ऐसे पास करता है, तो ये जो आपका ग्रीन एक्सिस है इसको हम बोल देते हैं जी डैश। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश का हाफ होगा। सो आई जी डैश विल बी हाफ ऑफ दिस यानी कि ml²/12। तो यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ml²/12। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ml²/6 जो हमने यहाँ पे यूज किया है। सो ऐसे आप सिमेट्री का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो जिनकी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके टेक्स्ट में गिवन नहीं है तो वहां पे आप ऐसे मेथड्स यूज कर सकते हो सिमेट्री के, कि पहले आप उसको एक रोड में कंप्रेस कीजिए और फिर दूसरा उसको किसी दूसरी शेप में जो वहां पे वो कंप्रेस होता है उस शेप में कंप्रेस कर लीजिए और उससे दोनों के इंडिविजुअल को आप ऐड कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली हमने जो यहाँ पे कवर किया उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी, थोड़ी बेटर हुई होगी। एंड अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके सजेशन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड आल्सो if you like this video, this content, then do share with your friends, press the like button and subscribe also. And if you want to donate something, then you can scan this QR code and donate whatever amount you want. With this इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं।
We will meet in next video.